ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 77th ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਹੋਏ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨਾਚ, ਲੋਕ ਕਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਚ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਲਾ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ, ਸੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ-रात एक करके काम करती है। तो मैम, पैनोरामा इंडिया की तरफ से ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया और आप भी पैनोरामा इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको कितना समय हो गया पैनोरामा इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो और कितने साल हो गए ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हुए? जी, पैनोरामा इंडिया जैसे मैंने अभी कहा कि 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2000 में रजिस्टर हुआ था। ये कॉन्सुलेट जनरल ने शुरू किया था उन दिनों के, और चलता रहा है तब से। और मैं खुद जुड़ी हूँ 2014 से। मैंने वॉलंटियरिंग भी किया, फिर मैं एक स्टेट फ्लोट भी स्पॉन्सर करती आ रही हूँ इतने सालों से। और फिर बाद में 2019 में मैं खुद बोर्ड पे आई और उसके बाद फिर पैंडेमिक आ गया। फिर पैंडेमिक के बाद 2020 में मैं चेयर बनी हूँ, तब से मैं चेयर हूँ। और इसके बाद अभी जो चल रहा है जैसे रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे, मेरी टेन्योर में मेरी टीम बहुत अच्छी रही है और हमें मौका मिला है इंडियन इंडिपेंडेंस डे की 75th एनिवर्सरी से ऑर्गेनाइज़ करने का, रिपब्लिक डे की 75th एनिवर्सरी की, और फिर पैनोरामा की सिल्वर जुबली भी ऑर्गेनाइज़ की। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे ये मौका मिला। ये 3 माइलस्टोन्स जो पता नहीं कब किसको चांस मिलेगा, लेकिन मैं सचमुच भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मुझे मिला। आगे भी पैनोरामा चलता ही रहेगा और पैनोरामा के ऐसे कार्यक्रम अच्छे ही होते रहेंगे, ये मेरी एक्चुअली उम्मीद और श्रद्धा भी है। और मैम, आज जो ये 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्राउड की अगर बात करें तो लग रहा है कि पिछले सालों से ज़्यादा लोग यहाँ पे आज पहुँचे हुए हैं। हर साल क्राउड बढ़ता ही जाता है वैसे, और हम लोग अलग अलग सेगमेंट, जैसे इस साल हमने और एक सेगमेंट ऐड किया, मिस्टर और मिस पैनोरामा इंडिया कंपटीशन, जिसमें कंटेस्ट और हम लोग सुबह जो पार्टिसिपेंट्स आए उसमें से चुनेंगे, शाम को रिजल्ट्स आएंगे उसमें, तो हम लोग क्राउन करेंगे मिस्टर पैनोरामा और मिस पैनोरामा इंडिया। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ वंडरफुल मोमेंट। एंड कार्यक्रम अभी जो चल रहा है पैनोरामा आइडल कंपटीशन, उसमें पता चलेगा जूनियर, सीनियर और आइडल कैटेगरी में कौन पैनोरामा आइडल बनेगा, जैसे सारेगामा और इंडियन आइडल बनते वैसे। और इसके बाद चलेगा फोक डांस कंपटीशन, और कल्चरल सेगमेंट में हमारे
100 के आसपास बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आर्ट कंपटीशन शुरू हुई है, वो पूरा दिन चल रही है वहाँ पे। सो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम, बूथ है, वेंडर बूथ है, खाने की चीज़ें हैं। सो अगर आप अभी तक आए नहीं हो तो डेफिनेटली आइएगा और मज़े लीजिए यहाँ पे। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ੀ सचदेव जी जुड़ चुके हैं, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गलबात करते हैं। तो मैम आज रिपब्लिक डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो क्राउड कैसा है, सबसे पहले उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मैं कहूँगी यहाँ पे काफ़ी क्राउड आया हुआ है। एक्चुअली अब पिछले सालों से ज़्यादा क्राउड आया है। हालांकि आज बहुत ही ठंड है, आज का वेदर फोरकास्ट काफ़ी लो था, बट उसके बावजूद पीपल आर हियर इन बिग नंबर्स। मेनली बिकॉज यहाँ पर एक तो हम आज बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं और हम इन कॉम्पिटिशन में सारे एज ग्रुप्स को कवर कर रहे हैं। तो इंटर जनरेशनल कॉम्पिटिशन है और हम सारे रीजन्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हमने जैसे सुबह ही शुरुआत कर दी थी 10 बजे विद मिस्टर मिस पैनोरमा कंपटीशन। तो उसके हमारे पास 30 कंटेस्टेंट्स थे, तो वो और उनकी फैमिलीज आए हुए हैं। फिर अभी आप सुन रहे होंगे कि पैनोरमा आइडल कंपटीशन चल रहा है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट सिंगिंग कंपटीशन है। एंड देन वी आर गोइंग टू हैव फोक डांस कॉम्पिटिशन्स, जिसमें कि हमारे पास 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड देयर इज़ एन आर्ट कॉम्पिटिशन हैपनिंग, प्लस वी हैव अ कल्चरल सेगमेंट छोटे बच्चों के लिए, जो कि इंडिया के डिफरेंट फेस्टिवल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। त्यौहार 2.0 हमारी सेगमेंट है, जहाँ पे बच्चे फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, लेसर नोन फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे काफ़ी क्राउड आया हुआ है आज, काफ़ी हमारे वेंडर्स हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो अगर आज आप यहाँ पे नहीं हैं तो आए, यू हैव टू जस्ट कम फ्रॉम अ वार्म होम टू अनदर वार्म होम। यहाँ पे आज हमने एक बहुत ही वार्म कम्युनिटी क्रिएट करी हुई है इंडिया के गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए, 77 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो आप आइए अगर आप यहाँ पे नहीं हैं, और जो यहाँ पे ਆਏ ਹੋਏ हैं, दे आर हैविंग अ फुल डे। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? आई एम रवि, मैं पैनोरमा इंडिया का फिनेंस देखता हूँ एंड हम ये प्रोग्राम 1999 से करते आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसमें हम देखते हैं कि सारे फैमिलीज़, आई डोंट नो अगर आप कैमरा उस तरफ घुमाए और आप देखें, सारे फैमिलीज़ अपने बच्चों के साथ आए हैं एंड वी डू लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स। वी डू आर्ट कॉम्पिटिशन, वी डू सिंगिंग कॉम्पिटिशन, वी डू डांस कॉम्पिटिशन, वी ट्राई एंड डू अ प्रोग्राम फॉर सीनियर्स। सो पूरे दिन में हम ऐसे करते हैं, सारे आर्ट कल्चर जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स है उसके आर्ट कल्चर, हमारे डिफरेंट अटायर्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स को हम स्टेज पर डिपिक्ट करते हैं और डिफरेंट स्टेट्स के परफॉर्मेंसेस होते हैं। एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, जो लोग हमारे इंडियन कल्चर को मिस कर रहे हैं, जो इंडिया छोड़कर कनाडा आ गए हैं, उन्हें हम चाहते हैं कि इंडिया का फ्लेवर यहाँ भी मिले एंड वो इंडिया से जुड़े रहें हमारे आर्ट कल्चर और खाने के जो वंडरफुल खाना है उस सब तरीके से। बिल्कुल, और कैनेडियन बॉर्न बच्चों को इंडियन कल्चर से जोड़ने का ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है। यस, बिल्कुल। बेसिकली अगर आप देखें तो बच्चे हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग हो गए या हिंदी फोक डांसेस हो गए, अपने डिफरेंट स्टेट्स के उन फोक डांसेस पर प्रैक्टिस करके ग्रुप्स में अगर दूसरे फैमिली के साथ आकर वो कॉस्ट्यूम्स पहनकर स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हैं। एंड दैट्स हाउ समटाइम दे आर सो नॉलेजेबल अबाउट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। सो व्हेन दे गो बैक होम, इट्स नथिंग इज़ न्यू फॉर देम, दे हैव ऑलरेडी सीन इट, एक्सपीरियंस इट and in fact performed on those different performances। ਤਾਂ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा टायरिंग हो गया है, पूरे दिन से हमारा प्रोग्राम चल रहा है सुबह 9 बजे से। जी, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन जो है पैनोरामा इंडिया की तरफ से हर साल ये प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, तो कितने दिन पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती है और क्या क्या होता है इस इवेंट में? हमारी तैयारियां तो हम 2 महीने 3 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। अभी हमारा कल्चरल इवेंट चल रहा है। मॉर्निंग में हमारा मिस्टर एंड मिसेस पैनोरामा इंडिया हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। हमारे पास बहुत सारे ऑल ओवर स्टेट्स के लोग आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। फिर हमारा सीनियर सेगमेंट होता है। सीनियर्स में उनकी सिंगिंग, पैट्रियाटिक सिंगिंग, डांसिंग, हमारा बहुत अच्छा ग्रुप है। आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर फॉर सीनियर प्रोग्राम्स एंड वॉल्टियर्स। सो हमारे पास हर साल इतने बड़े प्रोग्राम को करने के लिए वॉल्टियर्स तो चाहिए। यस, सो हमारे पास यंग स्टूडेंट्स आते हैं, एडल्ट्स आते हैं, सब मिलके हम लोग इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं। इट्स अ ह्यूज प्रोग्राम, वी नीड लॉट ऑफ पीपल, हैंड्स ऑन डेक। और मैम पैनोरामा इंडिया कब से यहाँ पे जैसे कनाडा में है, कब से काम कर रहा है और क्या क्या इवेंट्स और करवाए जाते हैं पैनोरामा इंडिया की तरफ से? पैनोरामा इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने लास्ट ईयर 25 ईयर्स सेलिब्रेट किए हैं। सो इट इज़ 26 ईयर ओल्ड नाउ एंड वी वर्क इन कोलैबोरेशन विद कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया। एंड अभी जैसे हमारे पास
लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल कैटेगरीज आर हियर, बच्चों से लेके बड़ों तक और बूढ़ों तक। हमारा अभी आर्ट कॉन्टेस्ट यहाँ साथ में चल रहा है, दैट इज़ कैनेडाज लार्जेस्ट आर्ट कॉन्टेस्ट। 250 प्लस स्टूडेंट्स, एडल्ट्स, सीनियर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं। हम सब अलग अलग कैटेगरीज में हैं और हम कम्युनिटी मेंबर्स को इनवाइट करते हैं जो कंडक्ट कराते हैं। अभी हमारे पास सिटी ऑफ मिसिसागा के मेयर, ब्रैम्पटन के मेयर, वो सब आर्ट कॉन्टेस्ट में पूरे बच्चों से मिलके गए। तो ये कोलैबोरेशन है, हम कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ वी एनकरेज ऑल पीपल टू कम, सभी कल्चर के लोग आते हैं, सभी स्टेट्स के और ऑल कल्चर्स को भी इनवाइट करते हैं हम। तो एक कोलैबोरेशन है, सब मिलके आएँ, एंजॉय करें और नई नई बातें और नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करें। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਮੰਚ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇहद ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਜੁੜਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਵੀ शुरुआत की गई, जिसनू मिस्टर एंड मिस पैनोरामा का नाम दिता गया। इस मुकाबले ने दर्शकों विच खास दिलचस्पी पैदा की। इस विच हिस्सा लैण वाले प्रतियोगियों ने गलबात दौरान दस्सिया कि उन्हां लई यह बेहद माण दी गल है कि विदेशी धरती ते रहिंदियां भी उन्हां नू अपने सूबे दे रवायती पहरावे अते संस्कृति नू मंच ते पेश करन दा मौका मिलिया। खास करके हरियाणवी पहरावे विच मंच ते उतरना उन्हां लई गर्व अते खुशी दा विशेष अनुभव सी। आज यहाँ पे पैनोरामा इंडिया की तरफ से जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका नाम क्या है और आप यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहे हैं या किस इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। So me and my wife together are basically right now representing the cultural event of India. We are participating from different basically states. Me both together. I'm from my name is Vinod Gulia and she is Jyoti Malik. I'm from Bhadurgarh and she is from Sonipat, and we are representing the Haryanvi culture, the Mr. and Mrs. Panorama India. Yeah, so we are participating that event, and the best part of the event, we are able to meet on this Republic Day the different diverse people from the India, all the background, and this is a kind of like feeling within India when you are outside India, away from your people, but within your people in a smaller space, in a far distance. और मैम आपको शेयर ऑन करना चाहेंगे। Just I'm talking about my dress. Just I put on today, it's like a Bawan Gaj ka daman I put on, and it's really heavy, but I'm feeling so confident putting on this one and all these jewelries. That is my cultural, showing me my culture, and I think so ये कोई एक पोशाक नहीं है, ये मेरी पहचान है और मेरा कल्चर, मेरी संस्कृति, मेरा अभिमान है और मेरा हरियाणा मेरा स्वाभिमान है। भारत हमारी शान है। भारत हमारी शान है। भारत हमारी शान है। थैंक यू।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। तो इतने और भी जो लोग पहुंचे हुए हैं उन्होंने नाल भी गलबात करते हैं। तो मैम आप यहाँ पे इवेंट पे पहुंचे हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमेशा ही हर साल एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जिसमें ये पैनोरामा इंडिया रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। वी आर फ्रॉम उत्तराखंड कल्चरल एसोसिएशन, हम खुद उत्तराखंड कमेटी से जुड़े हुए हैं, तो अपने देश को, अपने कल्चर को आगे बढ़ता देखते हुए हमेशा ही वी फील सो प्राउड। और यहाँ पे इतना क्राउड आता है, छोटे छोटे बच्चे, वी सी दे आर टचिंग, दे आर शोइंग देयर रूट्स यहाँ पे स्टेज में जो अभी परफॉर्मेंसेस हमने देखी, तो इट्स ऑलवेज फील्स प्राइड व्हेन वी आर हियर इन पैनोरामा एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन staying in Canada. थैंक यू सो मच। तो मैम आप भी यहाँ पे हर साल आते हैं इस इवेंट में? हाँ जी, हर साल आते हैं। मैं 3 साल से यहाँ पे आ रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील होता है। हमारा देश इतना, मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं सब लोग, दिल से परफॉर्मेंस करते हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनको हिंदी बोलनी भी नहीं आती फिर भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। आई रियली लाइक। ऐसे लगता है कि भारत में ही बैठे हैं आप? हाँ बिल्कुल, यही लगता है कि हम इंडिया में बैठ के देख रहे हैं। बहुत ही अच्छा। एंड थैंक्स टू ऑल पैनोरामा ग्रुप एंड एवरीवन हु वाज परफॉर्मिंग हियर। इनके बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको रियली सैल्यूट कि 7 समंदर पार रह के भी अपने कल्चर से इतने जुड़े हुए हैं। और पेरेंट्स का सबसे मतलब वो योगदान है पेरेंट्स का, जो अपने बच्चों को अपने रूट से जोड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम आप क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? Hi, Panorama India has been organizing this event since many years and we have always been a part of it. I am a director of cultural events in Uttarakhand Cultural Association and we always bring our folk dance here in the folk dance competition. I have even participated in the Panorama Idol competition as well. So as they are trying to bring up our culture even here in Canada and promoting everything about it, so we are also like actively participating and we always look forward towards this event. So all the best to Panorama India and kudos to the organizers. ਤੇ ਅੱਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ? I think this is the 77th ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ, तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। I think it's terrific। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ when you look at ਜਿਹੜਾ crowd ਹੈਗਾ and the celebration of India right in Canada is incredible। ਇੱਥੇ they have Mr. and Mrs. Panorama, they have Panorama Idol, and then they have all the different patriotic songs and cultural shows। ਸਾਰੇ states, at least most states ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਕੇਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਦਾ ਕਲਚਰ, ਆਪਦਾ ਡੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਟੈਰਿਫਿਕ ਐਂਡ ਮੈਂ ਵਿਦਈ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। And also to the entire committee ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ volunteers ਹੈਗੇ ਆ, everybody's a volunteer, which I think is incredible, so congratulations to them। And media ਨੂੰ ਵੀ Hamdard TV is always there in the community, and Hamdard TV and ਬਾਕੀ media ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ project their ਜਿਹੜੇ showcase this, bring this to the community is also very very important। So again Ganatantra Divas ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। Congratulations as we celebrate the Republic Day of India। It was in August the 15th, 1947, India got its independence, but then it was Dr. Ambedkar who was assigned to put the Constitution together, and that came into effect I think in November of 1949 and officially got executed in January 26, 1950. So it's a great celebration that made India its republic, and so we should celebrate with great pride। We're proud Canadians of Indian origin। ਇਸੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ 77th ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।